industry guru, the legend, serving industry since 2 decades. And he is been part of industry since last 22 years. Director at Rising Events and Promotions, had done more than hundreds of events. He has even expanded the event sector in F&B section also, and serving Jaipur with the brand Jaipur Wok in Chinese and continental food chain. So most welcome, and we are giving the warm welcome with the open hands and open hearts. Sir Harpreet sir is here with us. Harpreet Singh, Mr. Harpreet Singh. Thank you for coming, sir, and giving us such a precious time. Thank you so Ankita, much. yours seriously. Thanks for such a beautiful and a warm welcome. We all are of the same trade. बस थोड़ा सा एक extra edge मिल जाता है तो we can move forward. And सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि I was there in Ankita's session also yesterday, and the count was amazingly 150. मेरा count थोड़ा कम है, मुझे लग रहा है थोड़ी लोकप्रियता कम है मेरी. कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी. No issues. So guys, let's start. Viransh? Yes, sir. Yes. Okay. So let's start. So guys, this is my company's name. I work as Rising Events and Promotions Private Limited. And as earlier said, I've been into this industry from last 15 years. And we've been doing a lot of corporate activations till 2015. And fortunately, after 2015, we have been into weddings as well. But that forte lies to Ankita, so she takes care of it very beautifully. I've seen it yesterday. So this is my company logo, and fortunately, after a span of 14 years, I've been able to address my state as well, just to grow, promote, and initiate for the betterment of the event management. And I really love to see so many kids still into, after all this pandemic situation and all negativity, you are so much inclined to actually learn this trade. This trade is beautiful. And I would really love to state that Ankita and Deepak ji and Viransh are putting a lot of efforts to start up this new venture of theirs. And these guys are putting a lot of efforts. So now let's start our today's session, which is basically a product launch. So first of all, let's understand what is a product launch. So generally, whenever a brand which is already established or is supposed to be get established into the market, they introduce their new products which are innovative, which are better than what they have already introduced, and they need to actually change, because change is दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा positive factor है जो हमेशा आपको promote करता है in terms of your business and in terms of the market synopsis also. So this first slide basically says about a product launch. Now let's understand what product launch क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया. कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च पे काम करते हैं. मतलब हमारे मार्केट का जो एक रेशियो है प्रोडक्ट लॉन्च का, वैसे तो बहुत बड़ा है, बट मेजर सेक्टर्स को मैंने कुछ कुछ पार्ट्स में आप लोगों के लिए डिवाइड किया है. लाइक बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स करते हैं वो FMCG है. I think FMCG everybody knows, but still for your comfort, I have written a little more information about that. FMCG basically is a fast moving consumer goods. छोटी वैल्यू के होते हैं लेकिन उनका सर्कुलेशन बहुत बड़ा होता है, उनको हम FMCG कहते हैं. जैसे सोप्स हैं, टूथपेस्ट हैं, all these things, small consumer durable products which are consumed daily. Second sector हमारा जो आता है which is called automobile. So automobile everybody knows, it's about cars, bikes, commercials, non-commercial vehicles, ये सब automobiles में आते हैं. तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो हमारा है इस इंडस्ट्री में वो है टेलीकॉम. So Vodafone, Airtel, Idea, everybody knows about it. Then we have a very big sector which is going to come up, which is coming up amazingly good. That is banking, banks, Citibank, American Express, HDFC, ICICI. ये examples हैं आपके लिए banking के लिए. और उसके बाद एक सबसे बड़ा जो और हमारा segment है which is electronics. So electronics includes everything.
fridge, TV, mobiles, gadgets, everything is into electronics. अभी का जो सिस्टम और सिनेरियो आप देख रहे हैं, बिकॉज पिछले 1.5 साल से पैंडेमिक ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को हिट किया है, तो आने वाले टाइम में अगर आप लोगों में से जो भी कॉर्पोरेट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग दो बहुत बड़े सेक्टर हैं, और इन सेक्टर्स को अगर तरीके से टारगेट किया जाए तो यू कैन ग्रो एनॉर्मसली, मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट. बाकी प्रोडक्ट्स पे भी डेफिनेटली काम होता है, बट ये थोड़े से प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको मतलब ज्यादा स्कोप मिलता है काम करने का, आपके बजट्स थोड़े बड़े होते हैं, एंड the possibility of earning is little better than FMCGs and telecom and all these things. So इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. Now coming up to the मैं जिस प्रोडक्ट के साथ आपको अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर से है. मेरे दोनों प्रोडक्ट लॉन्चेस आज आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से related हैं. One is probably which I'm going to come up, and the other is a bigger product. So basically पहले हम शुरू करते हैं. अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च को जब प्लान करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसके लिए क्या होती हैं? एज एन इवेंट एजेंसी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बैक एंड व्हिच क्लाइंट डज, बट एज एन इवेंट एजेंसी आपके पास क्या स्कोप्स हैं जिनके ऊपर फोकस करके आप एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च प्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले जब क्लाइंट आपको पिच करता है प्रोडक्ट लॉन्च के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ कॉर्पोरेट एजेंसी ये समझना होता है कि उसका मार्केटिंग प्रोसेस क्या कहता है. सो द मार्केटिंग प्रोसेस हमारे इंडिया में दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी चलते हैं, दो सेक्शंस ऑफ बिजनेस चलते हैं. वन इज जिसको हम टीजी कहते हैं. टीजी बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है, और इसमें जिसको हम टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं या टारगेट कस्टमर के तौर पे कहा जाता है, जिसमें दो सेक्शंस हैं, अर्बन एंड रूरल. सो अर्बन इज बेसिकली सिटी और रूरल है बेसिकली गांव में, जो हमारा रूरल एरिया, बिकॉज बहुत बड़ा चंक है वो, उसके पूरा फोकस होता है कंपनीज का. जब हम इस मार्केटिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं तो हम अपनी प्रेजेंटेशन का ड्राइव उस तरीके से चलाते हैं. सबसे पहले क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले क्रिएटिव्स बनते हैं. वो क्रिएटिव्स बनते हैं बेसिकली मीडिया के लिए और प्रिंट्स के लिए, क्योंकि जब आप एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रिंट एड्स में भी जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी जाता है, सोशल मीडिया पे भी जाता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के पास भी जाता है. तो एक अच्छे पोटेंशियल क्रिएटिव्स की हमेशा ज़रूरत होती है. जब हम क्रिएटिव्स पे काम करके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप काम करता है कॉन्सेप्ट के ऊपर. अब जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बड़ा है, क्लाइंट बड़ा है, तो डेफिनेटली उसका जो दायरा है वो दायरा भी बड़ा होता है, और वो सबसे ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि वो किस जोग्राफिकल एरिया को, किस कस्टमर को और किस तरीके के प्रोडक्ट को वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं. तो जो कॉन्सेप्ट और जो थीम डिजाइन होता है, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं तो अब हमारी वेडिंग्स में भी थीम्स आने लग गए, लेकिन अगर थीम या कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर ही है जो आपको बेसिकली थीम्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना सिखाता है. Somebody who's doing a good corporate can be a better event manager than rest of the breed. This is my personal perception because I have been very closely to it. तो जब हम कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन होता है, आपके कस्टमर के हिसाब से डिजाइन होता है, और आपका जो जोग्राफिकल एरिया है जहां पे आपको उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, यूटिलाइज करना है, उस जोग्राफिकल एरिया को देखकर पूरा का पूरा सिस्टम, कॉन्सेप्ट, थीम डिजाइन किया जाता है. अब जब आपने कॉन्सेप्ट डिजाइन कर लिया, प्रमोशनल क्रिएटिव्स डिजाइन कर लिया, आपने अपना टीजी फोकस कर लिया, तो अब आता है नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस, मतलब एग्जीक्यूशन को आप कह लीजिए. प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग. तो जब हम ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस पे आते हैं इन सब चीजों के पास बाद में, तो सबसे पहले जो चीज फोकस करने वाली होती है वो होती है कि आप उस प्रोडक्ट को किस वेन्यू पे, आप किस जगह पे आप उसको लॉन्च कर रहे हैं. इट्स एन इंडोर वेन्यू और इट्स एन आउटडोर वेन्यू. तो जब आप इंडोर और आउटडोर सेग्रीगेट कर लेते हैं तो उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे कंपनीज आपको कहती हैं कि अब आप उनके पोटेंशियल्स के लिए, उनके कस्टमर्स के लिए, उनके रिटेलर्स के लिए, उनके जो भी वो प्रोडक्ट यूज करेगा, जिनको आपको उस प्रोडक्ट लॉन्च में इनवाइट करना है,
जो कॉन्सेप्ट आपने डिजाइन किया है उसके ऊपर आपको इनविटेशंस डिजाइन करने होते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन से पहले आपको डिजाइन करनी होती हैं एज एन इवेंट एजेंसी फॉर योर क्लाइंट। आप इन सब चीजों को फोकस करने के लिए बैकएंड पे आपके अलावा आपको और क्या चाहिए जो आपके प्रोडक्ट लॉन्च को और एनहांस करे, आपकी प्रोडक्टिविटी को शो करे, आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। बिकॉज हम सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। हम लोग एक अच्छे इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, बाकी चीजों पे हम काम करते हैं, बट अदरवाइज वी नीड एन एक्सपर्ट। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली टू क्रिएट ऑल दिस you should have a good designer, a 2D a 3D डिजाइनर जिसको कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके माइंडसेट के साथ चलता हो, जिसको आपका माइंडसेट समझ में आता हो। सो वी नीड अ वेरी गुड क्रिएटिव डिजाइनर जो आपके इस प्रोडक्ट लॉन्च में आपकी हेल्प करे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आती है वो होती है कि डिजाइनर के बाद जब आप उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपके पास स्किल्ड वेंडर्स होने चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं ऑडियो वीडियोस। बेसिकली ऑडियो वीडियो से मेरा मतलब है साउंड, लाइट, एलईडी वॉल्स, जो आजकल की जो प्रोसेस में आजकल चलती हैं, जो मैं आगे थोड़ा सा आपको भी लेकर जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट लॉन्च का प्रोसेस है जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप समझ पाएंगे तो आप अपने क्लाइंट को ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं।